जी, अस्सलाम वालेकुम all of you students and good evening. Hope so you will fine. Hope so you will all fine. Alhamdulillah. Today our topic is Today our topic is health assessment of the physical examination of a cardiovascular system. Student voice clear है? Slide visible है? जी. Today our topic is cardiovascular assessment and also including physical examination of the cardiovascular system. How to assess the cardiovascular system and how to examine the cardiovascular examination point of view. Hope so you are doing good and hope so you are all are well. Okay, now we will start the topic. Our learning objective is at the end of these lectures, will be able to review anatomy and physiology of a cardiovascular system and able to know the basic terms of the cardiovascular system and and also discuss what is a conduction system and also how to perform a physical assessment of the cardiovascular system and also understand the heart sounds sound 1 and sound 2 and make a differentiate between the normal and abnormal sounds. Today our learning objectives we will discuss one by one. Student, are you with me? Voice is clear? Slide also visible? No any network issues? Okay. So we will continue the lecture. Okay. Introduction of the cardiovascular system. Cardiovascular disease is the very state leading killers for both men and women among all racial and ethnic groups. Art through cardiovascular assessment will help to identify significant factors that can influence cardiovascular health, such as a high blood pressure, cholesterol level, cigarettes using a diabetes, cigarette using, diabetic mellitus, and also hypertension. These are the leading factors of cardiovascular diseases. Okay, brief introduction. See, now we will discuss basic terminology of the cardiovascular system. First of all, we will know about our CVP, central venous pressure. How to measure the central venous pressure? It is the venous pressure as a measure at the right atrium done by means of a catheter introduced through the medial cubital vein to the superior vena cava. ठीक है कि सेंट्रल वेनस प्रेशर हम किस तरह मेजर करते हैं कि हम इसको मेजर करते हैं हम राइट एट्रियम में. ठीक है, किस तरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम कैथीटर. ठीक है, थ्रू अ मीडियल क्यूबिटल वेन्स के जरिए सुपीरियर वेना के जरिए तो हम इसको सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं. जी, this is a brief introduction only. Terminology. Blood pressure. How to assess the blood pressure? And what is a blood pressure? It is the amount of force pressure that blood exerted on the walls of the blood vessels as it passes through them. ठीक है, blood pressure actually होता क्या है? क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, आप सबको आनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या है. कि जस्ट लाइक ये अमाउंट ऑफ ब्लड है या फोर्स है, इट इज द फोर्स. ये क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या? ये फोर्स है और एक प्रेशर है जो कि ब्लड एक्सर्ट करता है ऑन द ब्लड वेसल्स के साथ. जब ब्लड पास आउट होता है तो जो हमारी वेसल्स होती हैं ब्लड की, उनके साथ जब वो एक्सर्ट होता है तो वो प्रेशर, हम उसको प्रेशर, ब्लड प्रेशर कहते हैं. ठीक है जी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सिस्टोलिक प्रेशर्स? क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी आप सब ने सुनी होगी क्लिनिकल एरियाज में, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली आप सबको जो है ये क्लिनिकल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि सिस्टोलिक क्या है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर क्या है, मीन प्रेशर क्या है, पल्स प्रेशर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में होना होगा. तो इसलिए हम ब्रीफ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे यहाँ. ठीक है. Systolic pressure means the blood pressure measured during the periods of ventricular contraction. Systole in the blood pressure readings, it is the higher of the two measurements. ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर हम किस तरह मेजर करते हैं? हाउ टू मेजर द सिस्टोलिक प्रेशर या आर्टीरियल प्रेशर्स?
तो क्या करते हैं हम दोनों प्रेशर्स को, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक को क्या है, हम क्या करते हैं उसको हम प्लस करते हैं और क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं 3 के ऊपर। तो जो एंड प्रेशर होता है वो हमारा आर्टीरियल या हम उसको सिस्टोल प्रेशर भी कहते हैं। आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट्स? जी फातिमा, बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। अपना नेट चेक करो बेटा। जी, डायसिस्टोल, द पीरियड बिटवीन contractions of the atria or the ventricle during which blood enter the relaxed chambers from the systematic circulation and the lungs is called as diastole। क्योंकि आपने सुना होगा कि हम कहते हैं सिस्टोल का प्रेशर आता है जब कंट्रैक्शन हमारे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे, हम पीरियड जो है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, सिस्टोल जब आता है हम उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस। ठीक है, अब जब रिलैक्सेशन पीरियड होता है तो हम नॉर्मली ये लेबल करते हैं ये डायसिस्टोल में रिलैक्सेशन पीरियड है वेंट्रिकल का और एट्रिया का। ठीक है जी। डायसिस्टोलिक प्रेशर्स, द ब्लड प्रेशर एज ए मेजर बाय द सफिग्नोमोनोमीटर्स। डेफिनेटली आपको पता है कि हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर बात करते हैं, हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो इसमें हमारा सफिग्नोमोनोमीटर्स और स्टेथोस्कोप यूज होगा। ठीक है, आर यू गॉट माई पॉइंट? जी, इंस्ट्रूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आफ्टर द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट वाइल द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट रिफिल विद ब्लड, तो वो क्या होगा, डायसिस्टोलिक प्रेशर होगा। ठीक है जी। Now we will briefly review the anatomy and physiology of the heart. जी, this is our overview of the anatomy and physiology, pulmonary veins, ठीक है, pulmonary arteries, heart, 4 chambers, ठीक है, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle, ये क्या है, atrioventricular valves हैं, pulmonic valves हैं, aortic valves हैं, these are the brief anatomy physiology। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कि क्या है हमारा सुपीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा है, पल्मोनरी वेन्स हैं हमारी, ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड जिसको हम कहते हैं, माइटर्स जो है हमारा वेल्व है, एयोटिक वेल्व, ठीक है, पल्मोनिक वेल्व, राइट एंड लेफ्ट चैम्बर है हमारे सेंटर में, क्या है हमारा, क्या है, सेप्टर है जो कि डिवाइड करता है हमारे राइट और लेफ्ट जो है वो वेंट्रिकुलर को। ठीक है, पल्मोनिक आर्टरीज हैं, पल्मोनिक वेन्स हैं, एयोटा है। ठीक है, कंडक्शन सिस्टम, जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द कंडक्शन सिस्टम? कंडक्शन सिस्टम क्या है जी स्टूडेंट्स? अगर हम कंडक्शन सिस्टम की बात करें तो इसके बगैर जो है वो हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। अगर हमारी नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम जो एक अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर डाला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ऑफ द हार्ट जिसमें हम कंडक्शन सिस्टम इसको कहते हैं और इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी कहते हैं। सबको पता होगा क्योंकि हमने बेसिक एजुकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हार्ट की, कि उसमें क्या है, एसए नोड है, एवी नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स हैं। ठीक है, और बंडल ब्रांचेस हैं, राइट और लेफ्ट है, और कंडक्शन पाथवे है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट है, उसमें परकंजी फाइबर्स हम कहते हैं। एग्जैक्टली ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं ऐसे नोड्स, क्योंकि ये मसल्स को जो है वो एक किस्म का करंट की तरह है, एक करंट लगाते हैं जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, हार्ट के स्पेशली मसल्स। ठीक है, ऐसे नोड से क्या है, ट्रेवल करता है, जब वो इम्पल्सेशन स्टार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है तो वो इम्पल्सेस जो है इंटीरियो इंफ्रानोडल ट्रैक्ट तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा मिडल इंटरनोडल ट्रैक्ट है, फिर पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट आ जाता है तो एबी नोड तक पहुंचा जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स हैं। ठीक है, ये सामने पिक्चर आपको नजर आ रही है। ज्यादातर काम क्या है, ऐसे नोड है जो कि एट्रियस की बात करते हैं, उनको जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है वो जनरेट करता है। एवी नोड जो है वो आपकी एट्रियोवेंट्रिकुलर के जो है वो जॉइंट पे है, जो कि जनरेट करता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट की तरफ जो है बंडल ब्रांचेस हो जाती हैं हमारे वेंट्रिकल की बात के, और कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है जिसमें जो है वो पाथवे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कंडक्शन का पाथवे स्टार्ट हो जाता है, जो राइट और लेफ्ट जो है हमारे एट्रिया सॉरी वेंट्रिकल को क्या है, कंडक्शन सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है, दिस इज अ ब्रीफ व्यू कि ये सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है जस्ट लाइक एक करंट है। ठीक है,
जो कि मसल्स को करंट पास होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और रिलैक्स भी होते हैं. इज इट क्लियर? ओके जी. When we are going to assess the history of the cardiovascular, तो हमें ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है और हमें फॉरगेट नहीं करना मर्जोरी जॉर्डन के पैटर्न को. जिस तरह हम जॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को कभी भी हम फॉरगेट नहीं कर सकते when we are taking a history from the patients. तो keep in mind each pattern of the Jordan functional health pattern. History. What are the purpose of health history? The purpose of the health history, the cardiovascular, is to provide information about your patient's cardiovascular system and how they developed. A complete cardiovascular history will give you indications to potential or underlying cardiovascular illness or disease state. एक्चुअली हिस्ट्री कलेक्ट करने का हमारा पर्पस यही है कि वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं पेशेंट से रिलेटेड कि कार्डियोवास्कुलर से सिस्टम सिम्टम्स कौन कौन से प्रोड्यूस हैं उसके और कैसे डेवलप हुए हैं. और कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो इंडिकेट कर रही होती है. अगर आप ये नहीं फोकस पॉइंट पे ले लिया आपने, बट कंप्लीट हिस्ट्री कंपल्सरी कंप्लीट हिस्ट्री जो आपको इंडिकेट कर रही है जो कि उसके पोटेंशियल या अंडरलाइन कोई भी कार्डियोवास्कुलर इलनेस है. ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट हिस्ट्री लेना जरूरी है जी. पास्ट हिस्ट्री में भी हमें क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है या ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें पेशेंट से पूछने हैं. इट इज इम्पोर्टेंट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट योर पेशेंट्स हेल्थ हिस्ट्री. ठीक है, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री. द पास्ट हेल्थ हिस्ट्री शुड बी रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग इश्यूज. कौन कौन से फॉलोइंग इश्यूज हम पास्ट हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे? रिगार्डिंग हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड, हार्ट मरमर तो नहीं आपकी. ठीक है, congenital heart diseases, rheumatic fever or unexplained joint pains. These are the issues when we are collecting the patients, when we are collecting the past history from the patients. You must focus on these points. Hypertension, okay, cholesterol level, heart murmurs, ischemia, congenital heart diseases, rheumatic fevers or unexplained joint pains. जी. करंट लाइफस्टाइल और साइकोसोशल स्टेटस. डेफिनेटली हम पेशेंट्स के पास्ट हिस्ट्री के बाद भी करंट उसकी लाइफस्टाइल के वो क्या करता है, हाउस वाइफ है, फीमेल है या कोई फार्मर है या कोई लेबर है या ऑफिस वर्क करता है, ऑक्यूपेशनल हमें ज़रूरी उसका लाइफस्टाइल पूछना है. ठीक है, अब लाइफस्टाइल में क्या है उसके हम न्यूट्रिशनल पैटर्न को भी देखेंगे. क्या वो खाता है, जंक फूड है या बाहर का खाना खाता है या उसकी कोई डाइटिंग तो नहीं है, सब चीज़ें हम उनसे पूछेंगे. स्मोकिंग, जी स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. ठीक है, उसमें भी हम पूछेंगे कितने आप सिगरेट जो है वो पर डे लेते हो, कितने पैक लेते हो. ऑल दीज चीज़ें हम उससे डिस्कस करेंगे. ठीक है, अल्कोहल, कोई अल्कोहल अब्यूज़ तो नहीं वो करता. ठीक है, हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो अल्कोहल यूज़ करता है, क्या ड्रिंक करता है. एक्सरसाइज, कि वो एथलीट्स है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं उससे रिगार्डिंग हम उसकी एक्सरसाइज पूछेंगे. ड्रग्स, अगर कोई पास्ट हिस्ट्री उसकी है तो डेफिनेटली हम पूछेंगे पेशेंट से कि वो ड्रग्स अगर यूज़ कर रहा है तो वो कौन सी ले रहा है. फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स. ठीक है, मे बी ड्रग्स कोई डिप्रेशन के लिए लेता हो. ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, कोई जॉइंट्स पेन है, इस तरह की चीज़ें, तो हमें जो है वो हेल्प आउट करती हैं इन चीज़ों के लिए. जी, अब कौन से ऐसे हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए. ठीक है, कीप इन माइंड एंड रिमेंबर फॉलोइंग थिंग्स. डबल हेडेड और डबल ह्यूमन स्टेथोस्कोप. ठीक है, डबल वो हम उसकी बेल भी यूज़ कर सकते हैं, डायफ्राम भी यूज़ करते हैं. डेफिनेटली सफिग्नोमोनोमीटर्स, ब्लड प्रेशर कफ और लाइट सोर्स या पेन लाइट कुछ भी हो सकता है. मेजरिंग टेप, ठीक है, रिस्ट वॉच एंड पेन. दीज आर द इक्विपमेंट्स. जी, नाउ कम टू पॉइंट ऑन फिजिकल असेसमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट्स को कि हम, क्योंकि हिस्ट्री हमने ले ली कि पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री में इशू है या डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका बढ़ा हुआ है. ठीक है, ट्राइग्लिसराइड है. तो ये चीज़ें आप इंस्पेक्शन में आप पेशेंट को फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एग्जामिन करना है. तो हम सबसे पहले क्या किया, हमने इंस्पेक्ट किया. तो आई पे आपको प्रोमिनेंट अगर कोई लिपर्स आईलिड पे ज़ेंथेल्समा है तो वो आपको प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आ रही है. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ येलोइश प्लैग ऑन द आईलिड, ज़ेंथेल्समा,
could indicate, क्या करेगा आपका, hyperlipidemia, proteinemia are risk factors of hypertension as well as arteriosclerosis. जी बेटा, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है आप सबको? जी आलिया, व्हाट डू यू मीन? ओके, आईलिड में आपने क्या देखा कि ज़ेंथैलेसेमा क्या होता है, वो आईलिड के ऊपर जो है वो कॉमुलेशन हो जाती है आपकी हाइपर लाइपोप्रोटीमिया, हाइपर लाइपोप्रोटीमिया। एक्चुअली 00 लिखा हुआ था आलियो ने, तो मे बी मिस्टेक था, एरर राइटिंग था टाइपिंग में, ठीक है। तो हाइपर लाइपोप्रोटीमिया एक रिस्क फैक्टर है किसका, हाइपरटेंशन का, एज वेल एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। अगर आपको सामने नजर आ रहा है कि आई के ऊपर येलोइश कलर का एक प्लैग सा बना हुआ है आई लिड के ऊपर, तो ये इंडिकेट करता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को, और हाइपरटेंशन रिस्क हो सकता है। जी, चेस्ट में आपने देखा, डेफिनेटली चेस्ट में आपने देखना है कि चेस्ट में पिजन चेस्ट शेप है, ठीक है, और या पैनल चेस्ट है। तो चेस्ट में क्या करेंगे, ऑब्जर्व द चेस्ट ऑफ फॉर ओवरऑल टॉर्सो कंट्रोल, ठीक है। टॉर्सो कंट्रोल में आप देखेंगे कि उसकी शेप कैसी है। डू यू सी अ पेक्टस एक्सकवेटम और कर्नेटम, ये हमने दोनों चीज डिस्कस की थी। एक्सकवेटम क्या है और कर्नेटम क्या है, केव्ड इन चेस्ट, ठीक है, जिसको हम फैनल की तरह बात करते हैं। और डू यू सी पेक्टस क्रेनेटम, पिजन चेस्ट शेप। जी बेटा, समझ आ रही है सबकी कि चेस्ट शेप में हमने क्या क्या चीजें देखनी है? जी समझ आ रही है स्टूडेंट्स? जी गुड, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम बेटा का कि इशू हो जाता है नेट का, ठीक है, नेटवर्किंग इशू हो जाता है। स्किन, जी हमने पढ़ा इंस्पेक्ट में आई की बात देखी कि आई के ऊपर जो है लाइपोप्रोटीमिया टाइप को है, वो रिस्क फैक्टर किसका हो सकता है, हाइपरटेंशन का हो सकता है या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने चेस्ट की देखी, चेस्ट की शेप में देखना है ना, कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से हम असेस कर रहे हैं, जिस तरह हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम लास्ट टाइम पढ़ा था, इसी तरह हमने चेस्ट के ऊपर फोकस किया था। अब हम कार्डियोवास्कुलर की बात कर रहे हैं, तो हमें चेस्ट की शेप को जरूर देखना है, जिसमें हमने देखना है कि ये फेनल चेस्ट है या पिजन शेप उसकी चेस्ट है, ठीक है। तो ये सब चीजें कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट में भी हमारे पूरे चेस्ट की इंस्पेक्ट करेंगे। अब स्किन की बात करते हैं, तो सबसे प्रोमिनेंट कार्डियोवास्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, आई चेस्ट सब कुछ एग्जैक्टली खदीजा, थैंक यू बेटा। तो उसमें हम क्लबिंग की तरफ हो जाएगा, हमारे क्लबिंग नेल इमीडिएटली हमारे माइंड में आएगा कि क्लबिंग नेल है, मे बी रूमेटिक फीवर है उसका। द प्रेजेंस क्लबिंग, broadening of the extremities of the digits accompanied by a nail which are abnormally curved and shiny indicates chronic poor oxygen perfusions to the distal tissues of the hand and feet, ठीक है। हैंड के नेल्स भी जो है वो क्लबिंग में होंगे। आगे आपने देखा जो डिजिट उसका है नंबर 1 पे, जो हमारी फिंगर्स के आगे है, साइनोसिस क्लबिंग भी है, एग्जैक्टली बेटा, आर यू राइट। तो उसमें एक्चुअली व्हाट डू यू मीन क्लबिंग, तो क्लबिंग के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि जस्ट यू राइट ऑन द क्लबिंग, एक्सप्लेन व्हाट इज अ क्लबिंग नेल्स। द प्रेजेंस ऑफ क्लबिंग नेल में क्या हो जाता है कि ब्रॉडनिंग हो जाती है हमारी एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डिजिट, जैसे पोर्स की बात हम करते हैं, किसके साथ साथ इसके नेल जो है वो भी ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से, पुअर ऑक्सीजन परफ्यूजन की वजह से। और सेकेंडली क्या है, वो प्रोटूड्स हो जाते हैं। तो अब नॉर्मली उनके अंदर कर्व बन जाता है और शाइनी भी होते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं पुअर ऑक्सीजन परफ्यूजन को टू द डिस्टल टिश्यूज ऑफ द हैंड्स एंड फीट, दोनों के ही आपको क्लबिंग नेल्स मिलेंगे। आर यू गॉट माई पॉइंट्स? ओके जी। Cyanosis. The presence of cyanosis bluish colors also denote chronic poor oxygen delivery to the peripheral tissues of the hand and feet. अगर तो आपको जस्ट लाइक क्लबिंग नेल और येलिश कलर सा मिल रहा है, तो मतलब हम कहते हैं कि इतनी नहीं। अगर साइनोसिस भी साथ मिल रहा है, तो इट मीन्स कि ये क्रॉनिक पुअर ऑक्सीजन डिलीवरी है टू द पेरिफेरल टिश्यूज, और हैंड्स पे भी और फीट पे भी, ठीक है, अगर साइनोसिस मिलता है तो। जी अक्सा, आपका पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ओके
जेंथोमा, जेंथोमा पहले हमने पढ़ा था जेंथोल्मस थल्समा, जिसके अंदर लाइपोप्रोटीन्स और जस्ट लाइक लिपिड्स जो है वो अकोमोडेट हो जाते हैं हमारी स्किन के अंदर. द प्रेजेंस ऑफ येलोइश ब्लैक अंडर द स्किन, नॉन इरप्टिव, एक्सक्यूरेटेड थ्रू द स्किन इरप्टिव कुड इंडिकेट क्या कहते हैं हाइपोलाइपोप्रोटीनिया, एट अ रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन एज वेल एज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया प्रीवियस स्लाइड्स में. तो जेंथोमा आपकी बॉडी में भी हो सकता है, आपकी आईज के ऊपर, आईलिड के ऊपर भी जो है वो इसकी अकोमोलेशन हो जाती है. ठीक है, प्लैग बन जाते हैं, उसमें अकोमोलेट हो जाती हैं हाइपर लाइपोप्रोटीनिया, और ये हाइपरटेंशन और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की रिस्क फैक्टर्स की वजह से. एडीमा, जी हम एडीमा को भी एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको भी हम फॉरगेट नहीं कर सकते. द प्रेजेंस ऑफ एडीमा टिश्यू स्वेलिंग कैन बी काज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. ऑल्दो मोस्ट कॉमनली इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज कार्डियक फंक्शंस लीडिंग टू डिक्रीज कैपिलरी फ्लो. ठीक है, तो वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में क्या फ्लूइड अकोमोलेट हो जाएगा और एडीमा डेवलप हो जाएगा. ठीक है, ये क्या कर रहा था, मतलब सेवरल इसकी कॉजेज है. क्या है, जस्ट लाइक जो है फ्लूइड अकोमोलेट हो जाता है इसके अंदर हमारे इंटरस्टिशियल स्पेसिस पे, और डिक्रीज हो जाता है हमारा लीडिंग टू फंक्शन कैपिलरी फ्लो का. क्लियर है? ओके जी. Aortic and second intercostal. This is our orientations. Exactly, beta. Diabetes, hypertension also cause. This is a just anatomical mapping point of view से हम aortic sounds, pulmonic sounds, upwind, tricuspid, mitral valve कहाँ हम उसकी sound जो है वो सुनेंगे. ठीक है, तो ये जस्ट लाइक एक कंसेप्ट मैप की तरह हमने ड्रॉ किया है. इसमें क्या है, जस्ट लाइक एयोटिक साउंड हम कहाँ सुनेंगे. ठीक है, आपने अभी भी ब्रीफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी का देखा कि उसमें एयोटिक वेल्व है, पल्मोनिक वेल्व है. ठीक है, एरिया या कह सकते हैं, उसमें माइट्रल वेल्व है, ट्राइकस्पिड है, और अब पॉइंट की भी बात की हुई है. तो आपके कंसेप्ट क्लियर होना यहाँ जरूरी है कि अगर एयोटिक साउंड हम सुनेंगे तो स्टेथोस्कोप हम कहाँ प्लेस करेंगे, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे. ठीक है, पल्मोनिक हमने लुब और डुब की आवाज सुननी है ना, S1 और S2 हम साउंड सुनते हैं, तो वहां हम सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे हम S1 और S2 सुनेंगे. ठीक है, तो इसमें पल्मोनिक में क्या है, पल्मोनिक वेल्व की अगर हम साउंड सुनते हैं सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, ये हम असेसमेंट इंस्पेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको देखेंगे आस्कल्टेशन में. अप पॉइंट क्या है, मोस्टली अप पॉइंट कहते हैं, तो ये जस्ट लाइक है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस और मीडियल टू स्टर्नल के पास ही है. ठीक है, ट्राइकस्पिड फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल, ईसीजी इंटरप्रिटेशन से भी हम इसी तरह करते हैं. और माइट्रल में या एपेक्स जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे है. ठीक है, तो हम ईसीजी लीड जब प्लेस करते हैं तो हम तब भी एकोग्राम जब करते हैं तो यही हमारी प्लेसमेंट होती है, V1 की, V2 की, V3 की, V4 की, V5 की. ठीक है, और पेरिफेरल लीड्स जो रहती हैं वो कंडक्शन सिस्टम को प्रेजेंट कर रही होती है. इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी विल कम टू पॉइंट palpation. Palpation. Use the palm of your hands to feel the chest wall for the PMI, point of maximal impulse. ठीक है, हमने देखा कि फिर इंटरकोस्टल स्पेस बिलो द निपल है, हम इसको इंडिकेट करते हैं कि हम यहाँ PMI असेस करते हैं, फील करते हैं, which is usually found at the apex of the heart. This apical pulse is generally located in the fifth intercostal space, about 7 to 9 centimeters, the width of your palm, to the left of the midline. ठीक है, midline में क्या आ जाते हैं आपका, मिड क्लेविकुलर लाइन आ जाती है आपकी. तो यहाँ हम पैल्पेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम PMI को ही एग्जाम्पल देते हैं. ठीक है, यहाँ है एपिकल पल्स. ठीक है, एपिकल इम्पल्स की जो है मिड क्लेविकुलर लाइन है और 7 to 9 सेंटीमीटर्स बिलो है, और इसमें जो है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे है. तो पैल्पेशन में PMI की हम बात करते हैं. ठीक है, पेरिफेरल आर्टरीज, these include the brachial, radial, femoral, popliteal, dorsal, pedals and posterior tibials. इसमें हम क्या करते हैं, note the contour and amplitudes of each pulsation. These should feel similar bilaterally. क्योंकि हम पेरिफेरल, जब पेरिफेरल वास्कुलर असेसमेंट करते हैं तो उसमें हम सब आर्टरीज करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो है बेसिक में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ा होगा कि पेरिफेरल वास्कुलर असेसमेंट, तो उसमें ऑलमोस्ट हम जो है वो आर्टरीज, वेसल्स, इन सब की असेसमेंट करते हैं, देखते हैं, और दोनों को हम पैरेलल करते हैं. जिस तरह हमने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन नॉर्मल अब नॉर्मल,
तो हम दोनों चीज़ों को पैरेलल देखेंगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा, हमारा जो है वो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि आया कि अगर हम ब्रेकियल की बात करते हैं तो इस तरफ पल्सेशन हमें कैसी फील हो रही है और दूसरी तरफ कैसी है। अगर हम रेडियल की बात करते हैं तो दोनों बोथ साइड्स पे हम उसको सेस करेंगे। फीमोरल है तो हम फीमोरल को भी जो है वो हम बी या हम उसको पैल्पेट करेंगे तो वो हमें पल्सेशन फील होगी। मोस्टली हमें थिन पेशेंट्स में ये चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। जी, chest percussion normally on the left borders of the heart can be detected by percussion। ठीक है, हार्ट का जो है वो लेफ्ट बॉर्डर तो नॉर्मली जो है लेफ्ट बॉर्डर हार्ट का जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द परकशन। इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्टर्नम टू मिड क्लेविकुलर लाइन, क्योंकि सॉलिड है और उसमें डलनेस की आवाज आएगी। ठीक है, इन द थर्ड टू फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस the right border lies under the right margins of the sternum and is not detectable. Enlargement of the heart to either the left or right usually can be noticed। ठीक है, अगर हम चेस्ट में परकशन की अगर बात करते हैं हम उसको नॉर्मली, ठीक है, तो लाइटली हम परकस करते हैं तो वो हमें डलनेस सुनाई देती है। ओके, नॉर्मली हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर जो है वो हार्ट का हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय परकशन, और वो किस तरफ एक्सटेंड हुआ है, मिड क्लेविकुलर लाइन से थर्ड टू फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक जो है वो आपको डलनेस फील होगी। और राइट बॉर्डर जो है वो हम अंडर द राइट मार्जिन ऑफ द स्टर्नम, और ये डिटेक्टेबल नहीं है। अगर हार्ट आपका इनलार्ज है, कार्डियोमेगैली है पेशेंट्स का, तो हम दोनों साइड पे हम उसकी डलनेस को जो है वो नोट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके जी, आस्कल्टेशन यहां तक सबको क्लियर है बेटा? स्टूडेंट, आर यू विद मी? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? जी बेटा, एक्चुअली मैंने आपके लिए बहुत ब्रीफ कंसाइज क्लियर डाला है। अगर इसमें देखा जाए तो ईसीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मगर मैं रात को ही बुक की स्टडी कर रही थी आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो उसमें इतना डिटेल डेप्थ में ईसीजी के बारे में नहीं बताया हुआ था, बहुत शॉर्ट था। तो इस वजह से मैंने आपको फिर जो है वो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की है कि हम बेसिक चीज़ें जो आपके सिलेबस में है हम उन्हीं को फोकस करें, क्योंकि ईसीजी इंटरप्रिटेशंस कार्डियोवास्कुलर का ही पार्ट है। एक तो कंडक्शन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, और अगर जो कार्डियक आईसीयूज में काम कर रहे हैं तो उन लोगों को ये आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, हाउ टू मेजर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर्स एंड मीन, ये सब चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। एंड हाउ टू कैलकुलेट द हेमाटोक्राट, ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आप सबको आनी चाहिए। जी नीरव, एवरीथिंग इज क्लियर? Now we will move to auscultation। कोई क्यूरी तो नहीं है बेटा आपसे पूछने वाली प्रीवियस स्लाइड्स में? ओके, सिर्फ जी जी कर रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग हो भी रही है, समझ आ रही है या नहीं? अंडरस्टैंडिंग हो रही है बेटा? ओके जी, आस्कल्टेशन सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हमने आस्कल्टेट कैसे करना है। ठीक है, आस्कल्टेशन हम हार्ट के हमने देख लिए कि हम कौन कौन से एरियाज को जो है आस्कल्टेट करेंगे, और हम जो है स्टेथोस्कोप यूज करेंगे। जी, स्टेथोस्कोप के साथ हम यूज करेंगे, डायफ्राम हम यूज करेंगे और बेल भी हम यूज करेंगे। बेल हम किस लिए यूज करेंगे? मरमर के लिए, कोई एडिट साउंड्स हैं तो हम उनको लिसन करने के लिए। अब इसमें दो ही चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने डिस्कस कर लिए, यस मैम एबीजी ईसीजी, यस दोनों ही आती हैं, गुड हो गया, ठीक है। क्योंकि इसलिए मैंने इसमें इंटरप्रिटेशन ज़्यादा नहीं डाली कि हम ईसीजी की तरफ ही ना, हम अपने रेस्ट ऑफ टॉपिक में कि हमने हिस्ट्री कैसे कलेक्ट करनी है और एग्जामिन कैसे करना है कार्डियोवास्कुलर का, तो हम बेसिक चीज़ें ही देखें, ठीक है। तो इसमें अब दो ही साउंड है, S1 और S2, ठीक है। और प्लेसमेंट भी आपने देख लिया कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आपकी योटिक साउंड है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे क्या है, पल्मोनिक है। फिर आपका अब पॉइंट आ जाता है, माइट्रल आपका आ जाता है फोर्थ और फिफ्थ पे, ठीक है। तो इसी तरह हम सारे साउंड्स को देखेंगे कि हम प्लेस कैसे करते हैं। S1 में क्या है, इज द लूप ऑफ द लूप डूब, इज प्रोड्यूस बाय द कोलेयर ऑफ द ट्राइकोस्पिड एंड माइट्रल वेल्व। जैसा कि हम कहते हैं कि जो है हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोयर्स पे हमें S1 साउंड प्रोड्यूस होती है। वो कौन से एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हमारे?
tricuspid or mitral valves. S1 is accentuated in exercise, anemia, hyperthyroidism and mitral stenosis. ठीक है, accentuate हो सकती है. S1 क्या है, इज डैमेज भी हो सकती है, इज अ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक. और S1 क्या है, स्प्लिट भी हो सकती है, इज अ मोस्ट ऑडिबल इन द ट्राइकस्पिड एरिया. जिस तरह टी की आवाज आएगी, नॉर्मली लूप डुब होगी, तो सबसे पहले जो इसकी स्प्लिट है अगर कोई, तो आप ट्राइकस्पिड एरियाज पे आपने देखा ट्राइकस्पिड फोर्थ फिफ्थ पे है और माइट्रल वाल्व फिफ्थ पे है. आपने पहले प्लेसमेंट एनाटॉमिकल मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि हमने स्टेथोस्कोप कहाँ प्लेस करना है. ठीक है, तो इसमें टी की आवाज पहले आएगी, फिर बाद में क्या आएगा, लूप डूब. ठीक है, तो माइंड में रखें कि S1 साउंड जो है वो प्रोड्यूस कब होती है, ट्राइकोस्पिड और माइट्रल वाल्व के कोलेयर्स पे. और इन अदर वर्ड्स में आपको एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व के कोलेयर्स पे हमें S1 साउंड प्रोड्यूस होती है. अगर एसेंचुएटेड कोई एक्सरसाइज वगैरह कोई है तो इन कंडीशंस में जो है S1 एसेंचुएट हो सकती है, और S1 स्प्लिट भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. अगर S1 साउंड आपको लूप की आवाज नहीं आ रही तो इट मीन के फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है. जी बेटा, आपके अपने नेट में इशू होगा मिस फातिमा में भी, क्योंकि यहाँ ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, कोई नेट इशू नहीं है. ओके, अगर स्प्लिट हो रही है या कोई ट्राइकस्पिड एरिया पे कोई आपको साउंड सुनाई दे रही है S1, तो सब टी लुप डुप होगा. ठीक है, ओके. अब हम S1 अगर क्लियर है तो हम S2 की तरफ आ जाते हैं. ठीक है, S2 बेटा रिफ्रेश करो अपना ये मोबाइल डेटा को. ठीक है, या जो भी डिवाइस है उसको रिफ्रेश करो तो आवाज़ आ जाएगी. फातिमा, S2 में क्या है कि डूब की आवाज़ आ जाती है. ठीक है, डूब, लूब डूब, लूब डूब, क्योंकि S1 और S2 दोनों ही साथ आवाज़ आएंगे, प्रोड्यूस करेंगे. तो S2 is the dub of the is produced by the collager of the aortic and pulmonic valve. क्योंकि ये डुब की आवाज इसलिए आ रही है, एओर्टिक और पल्मोनिक वेल्व आपको पता है कि ये दोनों थोड़े से बड़े वेल्व हैं. ठीक है, तो इसलिए इसमें डुब की आवाज आएगी, थोड़े गहरे हैं, वाइडेंट हैं. ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी स्प्लिटिंग ऑफ S2 इज अ बेस्ट हेड एट अ पल्मोनिक एरिया. इट अकर ऑन इंस्पायरेशंस. लुब टी बीच में आएगा, डुब लुब डुब, टी की आवाज आ जाएगी. ठीक है, तो स्प्लिटिंग साउंड उसमें प्रोड्यूस होगी. फिजियोलॉजिकल उसका फंक्शन जो होगा, स्प्लिट कर रहा होगा S2 में, तो वो बेस्ट हेड आपको पल्मोनिक एरिया पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और स्प्लिटिंग ऑफ S2 कैन इंडिकेट पल्मोनिक स्टेनोसिस. अगर S2 की आपको टी के बीच में थोड़ी सी आवाज आ रही है तो जी बेटा S1 रिपीट कर दो. ओके, नो इशू. S1 क्या है, जैसा कि आप लोगों ने इस स्लाइड्स को देखा होगा. जी बेटा, जी इस स्लाइड को बहुत गौर से आपने देखना है. अब हमें पता है कि हमने स्टेथोस्कोप को अस्कल्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहाँ कहाँ स्टेथोस्कोप को प्लेस करना है और कौन सी हमें साउंड सुनाई देती है, ईसीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपने स्टेथोस्कोप भी इसी तरह करना है. अब आपने देखा सेकंड इंट्रोकोस्टल स्पेस पे हमने एओर्टिक है हमारा, हमें पता है. ठीक है, पल्मोनिक क्या है, सेकंड इंट्रोकोस्टल स्पेस पे है, थर्ड पे पॉइंट है, फोर्थ पे हमारा क्या है, ट्राइकस्पिड है, और फिफ्थ पे हमारा इंट्रोकोस्टल स्पेस जो है वो हमारा माइट्रल एरिया है या एपेक्स है. ठीक है, इस चीज को आपने अपने पॉइंट माइंड में रखना है और आपने S1 और S2 की बात करनी है. ठीक है, S1 में क्या है, इसकी साउंड क्या होगी, लूब की आवाज होगी. ठीक है, अच्छा बेटा, S1 में क्या होगी, लूब की आवाज आएगी, और ये किसकी वजह से होगी प्रोड्यूस. ठीक है, हमारे ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व जब क्लोज होंगे, ठीक है, क्लोयर होगी उनके, तो S1 प्रोड्यूस साउंड होगी. इट मीन्स यू कैन से इन अदर वर्ड्स, एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व जब क्लोज होंगे आपके, एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व कौन से, आपके ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व, तो उसको उस वक्त आवाज आएगी आपको S1 की लूप की. अगर उनमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर पेशेंट्स कोई एक्सरसाइज है, एथलीट्स वाले हैं, अनीमिक पेशेंट्स हैं, या हाइपरथायरॉइड कंडीशंस है ना बेटा, हाइपरथायरॉइडिज्म है या माइल्ड स्टीनोसिस है, तो उसमें इसमें क्या चेंजेस होंगे, सेंचुएटेड हो जाएगी. ठीक है, सेंचुएटेड हो जाएंगे. सेंचुएटेड का मतलब क्या है, अगर तो आपको सेंचुएटेड का मतलब आता है तो डेफिनेटली क्या होगा,
आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है। S1 इज सेंचुरेटेड कब होगी, मतलब नोटिसेबल आप कब, आप उसको नोट कब करोगे, सेंचुरेटेड का मतलब है नोटिसेबल। ठीक है। तो इन कंडीशंस में S1 जो है वो प्रोमिनेंट हो सकती है। ठीक है, कोई चीज़ उसमें है, आप उसको कह सकते हो। और S1 कब खत्म होगी, S1 साउंड ही आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो वो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है। अगर स्प्लिटिंग हो रही है तो आप ट्राइकस्पिड एरियाज पे आपको टी की आवाज पहले आएगी और लुक डुक बाद में आएगी। इज इट क्लियर? ओके। नॉर्मली आपको ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व क्लोजर होने पे ये प्रोड्यूस होती है S1, और S2 जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय द क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनिक वेल्व्स। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल क्या है इसकी स्प्लिटिंग, S2 इज अ बेस्ट ईयर, आपको पल्मोनिक एरिया पे सुनाई देगी। ठीक है, और ये ज्यादातर वाकया होती है, इट अकर ऑन इंस्पायरेशन, जब आप सांस ले रहे हो तो तब ये आवाज आप सुन सकते हो। इसमें भी लुब टी डुब लुब डुब इस तरह की साउंड उसकी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब स्प्लिटिंग ऑफ S2 कैन इंडिकेट, सबसे पहले तो उन्होंने कहा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग क्या होगी, S2 में बेस्ट हेयर आप कर सकते हो पल्मोनिक एरिया में। और उन्होंने कहा कि ये इंडिकेट किन में होगी, S2 पल्मोनिक स्टेनोसिस हो सकता है, ASD हो सकता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, ASD है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है, और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। ठीक है, इन कंडीशंस में स्प्लिटिंग S2 साउंड आपको सुनेगी। ठीक है, और बेस्ट एयर आप कर सकते हो इंस्पायरेशंस में, और लुब टी डुब इस तरह की इसकी साउंड होगी। जी। S3, S1 और S2 नॉर्मल साउंड्स हैं। ठीक है, जो कि हमें नॉर्मल सुननी है, जो कि S1 किस में प्रोड्यूस हो रही है, जी बेटा अभी अभी खतीजा, बेटा मैंने आपको बताया कि S1 नॉर्मल साउंड आपको लुब की आवाज आएगी। अगर इसके अंदर कोई एडिड साउंड आ जाती है, जैसे टी की साउंड आ जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, इट मीन्स के समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, लुब के अलावा अगर कोई भी एडिड साउंड आपको सुनाई दे रही है तो इट मीन समथिंग इज एरर। ठीक है, एरर भी हो सकता है, या कोई रिस्पेक्टर भी हो सकता है, या कोई डिजीज को रिलेट कर रही है। S2 में आपको पता है डुब की आवाज आती है। ठीक है, आपको लुब और डुब की आवाज आएगी, एक दफा लुब होगी एक दफा डुब होगी, तो डेफिनेटली डुब के साथ कोई एडिट साउंड टी की आ जाती है, ई की आ जाती है, तो इट मीन्स कि आपकी उस साउंड के साथ जो है वो थोड़ी सी लुब डुब जैसी आवाज नहीं है, और वो आप जो है उसको इंडिकेट कर रहे हो कि इसमें कोई एडिट साउंड है। ठीक है, क्लियर है जी। S1 और S2 और नॉर्मली हम सुनते हैं, अगर इसके साथ S3 है तो ये भी मोस्टली जो है S3 को भी नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, एज ए वेंट्रिकुलर गैल्प भी इसको बोलते हैं, लुब डुबता लुब डुबता, ये S3 साउंड की आवाज होगी। ठीक है, जैसे टा की आवाज आती है, टा पहले आएगा या सेंटर में आएगा, अगर एंड पे आ रहा है लुब डुब टा लुब डुब टा, तो इट मीन्स कि इसको हम वेंट्रिकल गैल्प भी करते हैं। ये जो है वो डायसिस्टॉल के साथ जो है वो हम उसको बेस्ट हेयर कर सकते हैं। अर्ली डायसिस्टॉल पीरियड रिलैक्सेशन चल रहा है, तो उससे पहले ये साउंड थोड़ी सी प्रोड्यूस होगी। इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि इसको हम कहा कि ये नॉर्मल भी है, S3 साउंड जो है वो नॉर्मल भी है। जी, तो इट इज, ये क्या है नॉर्मल, इट इज नॉर्मल इन प्रेगनेंसी चिल्ड्रन अडल्ट लेस देन 30 years ओल्ड। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंजाइटी और अनीमिया, इन कंडीशन में भी S3 साउंड जो है वो ऑडिबल है। ठीक है, और ये बेस्ट हेयर हम सुन सकते हैं अर्ली डायसिस्टॉल पीरियड से। इट इज अ हेयर बेस्ट एट द एपेक्स इन द लेफ्ट एट्रियल डिकोबाइटस पोजिशन में। ठीक है, थोड़ा सा हम कहते हैं ना उस तरफ थोड़ा सा मूव करें, तो मोस्टली जब हम हार्ट साउंड सुनते हैं अगर नॉर्मली, ठीक है, तो हम जो है 30 से 45 डिग्री पे हम उसको अपराइज कर लेते हैं। ठीक है, उसका अपराइट पोजीशन कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टर्न कर लेते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिकोबाइटस पोजीशन यूजिंग द बैक। पैथोलॉजिकल S3 occur in people over the age of 40, usually due to myocardial failure की वजह से। ठीक है, S3 साउंड जो है लुब डुब टा की आवाज देती है, और ये बेस्ट ईयर हम सुन सकते हैं अर्ली डायसिस्टॉल में,
नॉर्मली क्या है, ये प्रेगनेंसी में है, चिल्ड्रंस में, अडल्ट में जो कि लेस देन 30 ईयर्स में, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अनीमिया, एंजाइटी एक्सेट्रा, इनमें हम थर्ड साउंड जो है वो सुन सकते हैं। और बेस्ट ईयर जो है वो हमारी एपेक्स पे है, इन द लेफ्ट राइटर पोजीशन में। हम डिकोपाइटस पोजीशन थोड़ी सी उसकी कर लेते हैं और हम बेल के साथ सुनाई देते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? जी बेटा, उमेरा बीबी का क्वेश्चन है, ये ट्रू वेंट्रिकुलर वेल्व के क्लोजर हैं, ठीक है, तो हम उसको S1 साउंड। जी जी, S4 इज ऑल्सो नॉन एज एट्रियल गैल्प। एट्रियल गैल्प की अगर हम बात करते हैं तो टा लुब डुब आ गया, देखा ना, उसमें लुब डुब टा एंड पे था, इसमें ता जो है वो सबसे पहले आ गया, टा लुब डुब। तो डेफिनेटली जब एस साउंड क्या थी, लुब, सिंपल लुब थी। यहाँ खतीजा आपका आई थिंक क्वेश्चन था, जी किसका था? हम्म, कैसे क्लियर होगा? जी क्लियर हो गया था बेटा आपको कि सिंपल लूप जो आवाज आएगी वो S1 है, डुब क्या है, S2 है। अगर इसके साथ टा टी शुरू में या दरमियान में या एंड पे आ जाता है तो इट मीन्स वो गैल्प है। ठीक है, तो अब इसमें S4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी जो है एट्रियल गैल्प इसको हम कहेंगे, S4 साउंड को। तो टा पहले वर्ड्स आ जाएगा उसमें, ता लुब डुब। इट इज अ टिपिकल हेड इन द लेट डायसिस्टोल। S3 जो है वो अर्ली डायसिस्टोल में हम बेस्ट हेड कर सकते हैं। और ये टिपिकली साउंड कहाँ होगी, क्योंकि ये चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है कि S1 कब आएगी, S2 कब आएगी। ठीक है, जब ECG इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं तो उसमें हमें पता चल रहा होता है, ठीक है ना, PQR कब कम है, PQR कम्प्लेक्स है, RST है, ST एलिवेशन है, T डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें हमें देखते हैं तो हमें इसी चीज़ के हमारे माइंड में होता है ना एक, कि ये कौन से एरियाज में किस में प्रॉब्लम है। ठीक है, एग्जैक्टली S1 S2 जो है बेटा, S3 भी हम कंसिडर नॉर्मल ही करते हैं। उसमें हमने कंडीशन बता दी कि S3 साउंड किन में आएंगी, बच्चों में हो सकती हैं, बूढ़ों में हो सकती हैं, प्रेगनेंसी में हो सकती हैं, ठीक है, और एंजाइटी में हो सकती हैं, अनीमिया में हो सकती हैं। ये हमने 7 कंडीशन बता दी कि S3 किन किन कंडीशन में किस एज ग्रुप में आएंगे और उसको हम नॉर्मल कंसीडर करें। अब S4 की अगर हम बात करते हैं साउंड प्रोड्यूसर, जिसमें हमें उसको हम गैल्प कहेंगे, एट्रियल गैल्प, उसमें टा लुब डुब की आवाज आ रही है, तो ये हमें टिपिकली जो है वो लेट डायसिस्टोल से पहले थोड़ी सी आएगी। ठीक है, एस साउंड बिफोर S1 और लेट डायसिस्टोल में हमें S4 सुनाई देगी। वो हमें बेस्ट हेड कहाँ हो रही थी, S3, कि हमें अर्ली जो है वो डायसिस्टोल में, ये टिपिकली हेड होगी लेट डायसिस्टोल में और S1 से पहले। It is result when ventricular resistance to atrial filling is increased from either decreased ventricular compliance और increased ventricular volumes। उन दोनों conditions में ये हो सकती है, क्योंकि S1 से पहले, ठीक है, और लेट डायसिस्टोल में। तो ये क्या हो गया, किसके रिजल्ट में होगी, वेंट्रिकुलर रेजिस्टेंट टू एट्रियल फिलिंग, कि जो हमारा वेंट्रिकुलर फिल होता है ब्लड से, तो उसके रेजिस्टेंस में हो रहा है। इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, वेंट्रिकुलर कंप्लाइंस दोनों ही हो सकती है। उसका वॉल्यूम इंक्रीज, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इज इट क्लियर बेटा? S4 क्लियर है यहाँ तक? अगर नहीं क्लियर तो आई विल रिपीट। Is it clear? Students, are you with me? Where are you rest of students? Only 24 students. जी, summation gulp. Summation gulp में क्या है? Summation gulp is produced when, what do you understand about summation gulp? जी, अब थोड़ा सा आपको भी मुझे बताना है। summation gulp क्या है? Summation gulp, जी जी बेटा, गुड। सुमेशन गैल्प में ऑलमोस्ट क्या है कि इसे प्रोड्यूस व्हेन S3 साउंड और S4 साउंड मर्ज इनटू वन साउंड, तो उसको हम सुमेशन गैल्प बोलेंगे। और ये क्या होता है, इट इज ऑफन अकर एट अ रेट ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट और इट मे अकर इन हार्ट फेलियर एंड
पेरिकार्डियाटिस, सुमेशन गैल्प अकर इन 15% ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मोस्टली आपको ये साउंड जो है सुमेशन गैल्प की अगर बात करते हैं, जब एंजियोग्राफी इस तरह की करवा जाते हैं, पेशेंट्स करवाने के लिए जाते हैं, कार्डियक डिजीजेस को जो है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आया कि उसकी रिफिलिंग हो रही है या नहीं चैम्बर्स की, जिस तरह अभी हमने लास्ट S4 में बात की कि उसमें वेंटिकुलर में उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल मिक्सअप भी होती हैं। ठीक है, इन दोनों की S3 साउंड और S4 साउंड दोनों जब मर्ज हो जाती हैं तो वन साउंड प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो उसको हम समेशन गैल्प बोलते हैं। ठीक है, और ये कब कब आ जाती है? ठीक है, ओफन अकर एट द रेट ग्रेटर देन, जब 100 बीट्स पर मिनट होती हैं तो उस कंडीशंस में होती हैं। ठीक है, और किस कंडीशंस में हो सकती हैं? इंडिकेट क्या कर रही हैं? हार्ट फेलियर एंड पेरिकार्डियाटिस। और ये सुमेशन गैल्प क्योंकि परसेंटेज हम रिफिलिंग एकोग्राम पे हम बताते हैं, एकोकार्डियोग्राफी पे। ठीक है, तो ये 15% जो है वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, तो उसमें ये हमें सुनाई देता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके जी, ओपनिंग स्नैप, ये भी सुना होगा अगर जिन बच्चों ने कार्डियक आईसीयूज में ड्यूटीज की हैं या एंजियोग्राफी में, ठीक है, एकोग्राफी करवाते वक्त, तो उनमें ये चीज़ें आपको काफ़ी सुनने को मिलती होंगी क्लिनिकल एरियाज में। सिनेप्टिक गैप है, ओपनिंग गैप है। ठीक है, ये ओपनिंग स्नैप क्या है? एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल व्हेन द aortic and pulmonic valve close, S2 is produced immediately. After S2 is the heart relax and ventricular pressures fall below that of arterial pressures. This allows the atrioventricular valves to open. This is a state of diastole. आपने देखा होगा कि इसमें मोस्टली कि जिस तरह हमने S3 की बात की, तो वो क्या करते हैं मोस्टली हिट हमें अर्ली डायसिस्टोल पे, और S4 क्या है, वो जो है वो उसके आफ्टर डायसिस्टोल के, इमीडिएटली आफ्टर डायसिस्टोल और बिफोर S1। तो इसी तरह ओपनिंग स्नैप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एओर्टिक पल्मोनिक वाल्व क्लोज, इन दोनों के बाद जो है ये हमें ओपनिंग गैप एट द एंड स्टार्ट होता है। और S2 जो है वो ऑलमोस्ट प्रोड्यूस होता है इमीडिएटली। ठीक है, S2 इमीडिएटली प्रोड्यूस हो जाता है S2 के बाद। ठीक है, और हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है और वेंटिकुलर प्रेशर जो है वो फॉल हो जाता है हमारे बिलो द आर्टीरियल प्रेशर्स। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया हाउ टू कैलकुलेट द आर्टीरियल प्रेशर्स और पल्स प्रेशर्स, तो हम क्या कर किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं? ओके यस बेटा, आप लोगों की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। हम आपके लिए किस लिए इतना टाइम जो है वो अपना वेस्ट भी करते हैं, हम आपके लिए प्रेपरेशन करते हैं ताकि आप सब बच्चे जो है वो प्रेजेंट। ठीक है, योर ओनली 24 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक पे हमने इवनिंग क्लासेस रखी। स्टार्टिंग में यू नो कि हम लोगों ने मॉर्निंग में ही टाइम एडजस्ट किया था, तो कोशिश किया करें आप लोग जल्दी, क्योंकि अगर आपकी मॉर्निंग ड्यूटी भी है तो डेफिनेटली आप 2:30 तक जो है वो फ्री हो जाते होंगे। ओके जी, this allows the atrioventricular valves to open. This is a heart state of the diastole. Okay, any questions? रिमेनिंग लेक्चर्स हम जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह टुमारो विल डिस्कस। अभी आपकी नेक्स्ट प्रेजेंटर आ गई है मिस अबीरा। ठीक है, शी इज़ वेटिंग फॉर मी कि आप जल्दी से मैं लेक्चर बंद करूं और वो स्टार्ट करें। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है आपका? बाकी जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं हम उसको जो है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। और सब बहुत अच्छे से ये पढ़ के आना। मैंने SELMS सिस्टम पे इसको क्या कर दिया, मैंने शो कर दिया है और आप लोग जो है वो सारा पढ़ के आएंगे। ठीक है, ओपनिंग स्नैप से ही मैं स्टार्ट करूंगी। कल इजेक्शन क्लिक क्या है, मिड सिस्टोलिक क्या है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब क्या है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ओके, नो क्वेश्चन? ओके, या तो सबको आ जाता है या बिल्कुल भी नहीं समझ आती, ऐसे ही है ना। इसकी दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वेल अंडरस्टैंडिंग या सर से गुजर गया। ओके, गुड बाय भाई, अल्लाह हाफिज।
ओके। ओके भी, अल्लाह हाफिज़।